A very good morning, students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts. Today, in the class of economics, we are going to start our 11th lecture. But before starting our 11th lecture, we will discuss the points that we have covered in the previous lecture. In the previous lecture, we have covered about the meaning of utility, different concepts of utility, that is the cardinal approach and the ordinal approach. According to cardinal approach, whatever the satisfaction we are getting from the consumption of goods and services, we can measure it. And according to ordinal approach, whatever the satisfaction we are getting from the consumption of goods and services, we can give preference to it. And after that, we have seen about the concept of total utility and marginal utility. What is total utility? The sum total of satisfaction a particular person get when he or she uses different units of commodity. And what is marginal utility? That is the additional utility derived from the consumption of additional unit. That's all about the previous lecture. Today in the 11th lecture we are going to discuss about the diagrammatic presentation of total utility and marginal utility, and relationship between total utility and marginal utility. Next, law of diminishing marginal utility, and the last one, that is the assumptions of law of diminishing marginal utility. Let us discuss them one by one. The very first topic, that is the relation between total utility and marginal utility. We can see a schedule over there. Beta, in the previous lectures also we have told you schedule. What is schedule? Schedule is a टेबुलर प्रेजेंटेशन. स्केड्यूल क्या होता है बेटा? एक टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है. सो वी विल अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू विद द हेल्प ऑफ अ स्केड्यूल एंड अ diagram. Initially this is the schedule. We can see in this the units consumed is given, that is in the quantity 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thereafter second column about total utility, that is 0, 8, 14, 18, 20, 20 and 18. Thereafter mu dash 8, 6, 4, 2, 0 and -2. ठीक है. On the basis of this schedule or with the help of this schedule, we will understand the relation between TU and MU. We will keep in mind this table and then we are just watching the points. Just see over here the very first point. As more and more units of a commodity are consumed, MU from each successive unit goes on diminishing. Diminishing का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग. इसने क्या बताया? पहला रिलेशन ये बताया कि जब हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं. अगर हम लोग शेड्यूल की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 था, है ना बेटा? तो हमारी जो एम की वैल्यू है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है. यू कैन सी इन द डायग्राम प्रीवियसली कि अगर हम लोग बात करेंगे डैश डैश के बाद 8, 8 के बाद 6 कम हो गया बेटा, 6 के बाद 4 और कम हो गया, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0, 0 के बाद -2. तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट बिटवीन टी यू एंड एम यू कि एज सुन एज वी विल कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, जो हमारी एम यू की वैल्यू है वो कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी. नाउ दिस कैन बी सीन इन द बिलो कर्व ऑफ एम यू. ठीक है, ये हम लोगों को अभी जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लेंगे उसमें हम लोग कर्व लेंगे. इन दैट वी कैन सी दैट द एम यू कर्व विल बी ऑलवेज डाउनवर्ड. हमेशा एम यू कर्व कैसा होता है? स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है. ठीक, वी आर कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, एम यू ऑफ फर्स्ट 4 यूनिट्स बीइंग पॉजिटिव. अगर हम लोग फर्स्ट 4 यूनिट्स को देखें तो उसके करस्पॉन्डेंस में एम यू की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है. देखिए 8, 6, 4, 2 है ना. तो ये सब हमारी क्या है? एम यू की वैल्यू पॉजिटिव है. तो इसने बताया टिल द टाइम द वैल्यू ऑफ एम यू रिमेन्स पॉजिटिव, तब तक आपकी टी यू की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. अब आप करस्पॉन्डेंस में टी यू की वैल्यू देखिए बेटा. शेड्यूल में देखेंगे 0, 8, 14, 18, 20. तो क्या हो रहा है? यहाँ तक हमारी टी यू की वैल्यू कंटिन्यूसली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट. टिल द वैल्यू ऑफ एम यू रिमेन्स पॉजिटिव, द वैल्यू ऑफ टी यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीज होती है. ठीक है, और इसको हम लोग डायग्राम में टिल पॉइंट जी देख सकते हैं. अभी हम लोग डायग्राम में भी डिस्कस करेंगे प्रॉपरली. ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, व्हेन द वैल्यू ऑफ एम यू विल बी 0. जब एम यू की वैल्यू 0 होगी, कम टू द 5th यूनिट, उसके करस्पॉन्डेंस में एम यू की वैल्यू देखिए बेटा, दैट इज 0. इन दैट कंडीशन टी यू विल बी कंसिडर्ड मैक्सिमम, और उसके करस्पॉन्डेंस में टी यू क्या होगा? हमारा मैक्सिमम. एंड वी कैन सी द वैल्यू ऑफ टी यू, दैट इज 20. नाउ वन पॉइंट इज देयर. अगर हम लोग शेड्यूल को ध्यान से देखें तो हम लोग को टी यू 2 जगह 20 दिख रहा है.
at fourth unit as well and at fifth unit as well. So if it is asked from you, state when the value of tu is maximum. If you will say at the fourth unit, then your answer will be wrong. tu maximum होने की एक कंडीशन है, एंड दैट कंडीशन इज दैट द करस्पॉन्डेंस वैल्यू ऑफ mu, उसके सामने वाली mu की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, जीरो होनी चाहिए. दैट मीन्स कि हमारा जो tu मैक्सिमम कब होगा, एट फिफ्थ यूनिट. और उसको हम लोगों ने डायग्राम में g पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है, जिसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है पॉइंट ऑफ सेचुरेशन से, रिप्रेजेंट किया है पॉइंट ऑफ सैटिएटी से. ठीक है. नाउ फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, व्हेन mu इज नेगेटिव tu स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड एज सुन एज अवर mu विल बिकम नेगेटिव. अब जब हमारा mu नेगेटिव हो जाएगा तो जो tu की वैल्यू अभी तक पॉजिटिव या फिर कांस्टेंट थी, इंक्रीजिंग या कांस्टेंट थी, अब वो डिक्रीज होनी क्या हो जाएगी बेटा, स्टार्ट हो जाएगी. अब 20 के बाद फिर से 20, 20 के बाद फिर क्या होगा 18. नाउ द वैल्यू ऑफ tu स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. ठीक है. इसको हम लोग डायग्राम के फॉर्म में देख सकते हैं. ये देखिए बेटा, टिल जो फर्स्ट पॉइंट था वो था ये कि जब तक हम लोग एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेंगे mu की वैल्यू डिक्रीज होगी. सी द बी फिगर जिसमें हम देख रहे हैं कि mu स्लोपिंग डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ आ रहा है ना. तो ये तो फर्स्ट पॉइंट का रिलेशन हो गया. सेकेंड इसने बताया जब तक हमारी mu की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, हमारी mu की वैल्यू बी डायग्राम में देखेंगे 5 यूनिट तक पॉजिटिव है ना. तो वहाँ पे उसके ऊपर mu का, अगर हम लोग tu का डायग्राम देखें तो आवर वैल्यू ऑफ tu इज़ इंक्रीजिंग, है ना. जो स्लोप कर्व है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ tu इज़ इंक्रीजिंग. थर्ड पॉइंट बताया था इसने बेटा, व्हेन mu इज़ जीरो, फिफ्थ यूनिट पे जीरो है, उसके करस्पॉन्डेंस में जस्ट ऊपर जो tu की वैल्यू दैट विल बी मैक्सिमम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट g एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ सेचुरेशन और पॉइंट ऑफ सैटिएटी. ठीक है. एंड द लास्ट वन, एज सुन एज mu विल बिकम नेगेटिव, है ना. फिफ्थ यूनिट के बाद हमारी जो mu की वैल्यू वो नेगेटिव होनी स्टार्ट हो गई है, और उसके करस्पॉन्डेंस में अगर हम लोग टोटल यूटिलिटी की वैल्यू देखें तो tu हमारी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन tu एंड mu. यहाँ पे एक नोट है बेटा, व्हेन द वैल्यू ऑफ mu इज़ ज़ीरो, जब हमारी mu की वैल्यू ज़ीरो होती है, एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट द वैल्यू ऑफ tu इज़ मैक्सिमम, इट इज़ कंसिडर्ड एज द पॉइंट ऑफ सेचुरेशन और पॉइंट ऑफ सैटिएटी. ठीक है. बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेचुरेशन या फिर पॉइंट ऑफ सैटिएटी बोलते हैं. ठीक. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ हम सबको पता है, दैट इज रूल, है ना. डिमिनिशिंग दैट मीन्स डिक्रीजिंग, और मार्जिनल यूटिलिटी वी हैव रेड अबाउट प्रीवियसली, है ना. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, or this law states that as more and more standard units of a commodity आर कंज्यूम्ड, है ना. जब भी हम किसी कमोडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंटिन्यूसली कंज्यूम करेंगे, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट विल डिक्लाइन, and after every additional unit whatever the mu we will get, marginal utility we will get, that will be on the trend of decreasing. See further, indeed it is very natural to happen in respect of all goods and services. और ये जो फिनोमेना है इट इज़ वेरी नेचुरल, ऐसा बहुत कॉमन है. ठीक. आगे देखते हैं बेटा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, है ना. इसको हम लोगों ने एक और नेम दिया, दैट इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड अदर नेम इज़ फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ. इफ़ वी टॉक अबाउट दिस फर्दर दिस लॉ, तो यू कैन सी image over here. When the particular person is using the first unit of apple, the particular person is getting the maximum satisfaction. As soon as the particular person consumes the second unit, the satisfaction meter keeps on decreasing, and on the third unit जो satisfaction meter है वो और क्या हो गया, डाउन आ गया. ठीक है. इसको आप बहुत कॉमनली ऐसे लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैविंग अ पर्टिकुलर डिश दैट इज़ योर फेवरेट, बट still as it is your favorite, you are having a certain capacity to consume it. As soon as you will consume the first unit, you will get the maximum satisfaction, but as soon as you will consume more and more units, the satisfaction keep on decreasing, and your speed consuming the good will also come down. So this is the example of law of diminishing marginal utility. Now see, there are two basic assumptions of law of DMU. इसको हम लोग बेटा लॉ ऑफ DMU भी बोलते हैं. D से डिमिनिशिंग, M से मार्जिनल, U से यूटिलिटी. ठीक है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द टू बेसिक assumptions ऑफ DMU, द वेरी फर्स्ट assumption इज दैट ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड. हर एक कमोडिटी की एक स्टैंडर्ड्स होता है ना. तो उसका जो कंजम्पशन है, जो यहाँ पे लॉ में बोला है, एज मोर एंड मोर यूनिट्स विल बी कंज्यूम्ड,
तो ये जो हम यूनिट्स कंज्यूम करेंगे वो स्टैंडर्ड यूनिट्स होंगी. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट टी, obviously it will be offered in cup, not in glass, not in bucket and not in spoon, है ना. अगर हम लोग किसी को टी सर्व करेंगे तो ना हम स्पून में सर्व करेंगे ना हम बकेट में सर्व करेंगे. obviously we are going to serve that tea in the cup. So this is the standard unit. Second, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी मस्ट बी कंटिन्यूस. और जो कमोडिटी का कंजम्पशन है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए. इफ़ इट विल नॉट बी continuous, obviously the mu will never decrease. For example, I am just giving you your favorite dish in the morning, and then I am giving that favorite dish in the afternoon as well and in the night as well. So there is a difference between the consumption morning, afternoon and evening. In that condition, every time you will get the equal satisfaction or more satisfaction from the additional unit. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यूसली एक कंटिन्यूस पैटर्न में होना चाहिए. ठीक. एक्सेप्ट इन दिस वन another thing is there are some certain fields in which this law does not apply. जनरली तो मैक्सिमम टाइम ये जो लॉ है वो अप्लाई होता है, लेकिन कुछ सर्टेन ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे लॉ अप्लाई नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू मनी, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, है ना, तो ये लॉ अप्लाई नहीं होता. more the money you will get, more satisfaction you will get. more the money you will get, more the satisfaction you will get. ठीक है, जितना ज़्यादा आपको अमाउंट मनी का मिलेगा आपका सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ज़्यादा होगा. आप ये नहीं बोलोगे कि भाई मेरा अकाउंट भर गया मेरे को और पैसे मत दो. यू विल कीप ऑन एडिंग द मोर एंड मोर अमाउंट. आप बोलो मैम बस आप पैसा देते जाइए, वी विल ओपन अ लॉट ऑफ अकाउंट एंड वी विल सेटल डाउन द मनी ओवर देयर. ठीक है, तो मनी, ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, है ना, ज्वेलरी, इन सब कंडीशन में ये जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा. एंड एक्सेप्ट इन दिस व्हेन वी टॉक टू द एडिक्टेड गुड्स, है ना, जब हम लोग एडिक्टेड गुड्स की बात करते हैं देन ऑल्सो दिस लॉ विल नॉट अप्लाई. एडिक्टेड गुड्स में क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कोहल, we are taking an example of cigarette. In that condition, as more and more units will be consumed, the more and more satisfaction will be utilized by the particular person who is addicted to the certain good. ठीक है बेटा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. आज हम लोगों ने देखा द रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू with the help of schedule, with the help of diagram. Thereafter we have seen about the law of DMU, that is law of diminishing marginal utility, and the basic assumptions of DMU. So this is all about today. Thank you very much. God bless you all.